In cargo vessels, second and third stage alarm can be merged into one. That means both alarms can sound together. So that was second stage alarm. Second deviation. Third, we can add up that timing plus minus, which is 5% or 5 seconds, whichever is less. So that concluded our Banwas last time. Okay, Samit, you can mute your microphone. Yeah, good. Okay. We were to start AIS today. Is that correct? Yes, sir. AIS. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So AIS, automatic identification system. You know, the advancement of technology is allowing us to do things in a much smarter way. AIS on board ship is another example of advancement of technology and how this technology is making our life a little easier. Whenever we have something at hand, we should be convinced about its use. It should appeal to us that yes, this is my help. That gives you more confidence in using it and be more, honest about using it. AIS use can be understood by a situation when you have 2-3 ships coming and you want to talk to a particular ship. Then you give a call to them, maybe on the VHF. What kind of identification do you use for that particular ship? 3 ships coming from the same direction, maybe in a TSS. All the 3 doing same course, same speed, kind of same position. So how do we call them? We give Call sign, sir. Call sign. कहाँ से मिलेगा कॉल साइन? AIS. AIS. तो वो तो बहुत स्मार्ट होगा कि हाँ देखो. So now you are yourself saying that AIS is giving positive identification. That means it has got some value. If there was no AIS, then we could only give vague identification like ship in position so and so, speed so and so, course and so, and that would be detected by our ARPA. ARPA again is another technology which is giving us this, but still it is some kind of shortfall in one way. But if we had the AIS, we can call by hull color also. हल कलर ओके. रात में है तो हल कलर कैसे? रात में दिखता है आपको क्या कलर? नहीं दिखता ना. Day we can call by hull color. Yes. So during daytime, very good. In daytime we can call by hull color, funnel color, this that, whatever, bulk carrier और tanker हम लोग identify कर लें तो वो भी identification दे सकते हैं कि अच्छा this is a bulk carrier और gearless bulk carrier, whatever, और container ship, उस तरीके का identification भी दे सकते हैं. But it is limited. Another condition, when you are calling, there are other 10 ships calling each other. इधर उधर बात हो रही है. चैनल ओवरलोड. एक ही चैनल है, उस पे इतने लोग बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो सकती है, इंटरफेरेंस होगा. AIS is eliminating those kind of problems. AIS, automatic identification system, in 2000, year 2000, there was an amendment proposed in the SOLAS chapter 5, regulation 19, where it specifies what kind of carriage of equipment should be defined for different kind of vessels. So that amendment included carriage of AIS as well. It said all the vessels of different type, event type, will be required to carry a device called AIS. And finally, it was mandated in 2002. First the amendment and then finally implementation. So certain kind of ships
will be required to carry a device called AIS, Identification, Automatic Identification System. It is an electronic device for two-way communication. It transmits and it receives. What is the objective? What will it transmit? What will it receive? It will transmit the ship's identification and navigational parameters to other ships in the vicinity. It will also receive such information transmitted by other ships. वो भी अपना identification and navigational parameters will be transmitted by other ships also. So my AIS will also receive this. My AIS can also exchange data with shore-based authorities like VTS, Vessel Traffic, or VMS, Vessel Traffic Management. So AIS objective is to exchange information, exchange navigational parameters and identification of the ship with other ships in the vicinity. And this helps in enhancing safety of navigation. This exchange of data should happen automatically. आप लोगों सभी लोगों ने जहाज पे सेल किया है, आपने देखा है कि आपको AIS को कुछ भी करना नहीं पड़ता, ना तो ट्रांसमिट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है और ना रिसीव करने के लिए कुछ करना पड़ता है. All that you have to do is see what the information is there. So this exchange of information should happen automatically without any human intervention. How will it do? ये information transmit होगा तो कहां से? So the ship's name, call sign, IMO number, MMSI, type of ship, etc., such kind of things which are fixed with a ship, always same. नाम बदली तो नहीं होगा आज और कल में. Call sign भी वही रहेगा, length of ship वही रहेगा, width of the ship वही रहेगा, MMSI भी वही रहेगा. So certain kind of parameters are already provided, and other parameters which are changing like position, course, speed, rate of turn. These kind of things are collected from different devices. Sensor equipment बोलते हैं. जहाज की लैंग्वेज में एक डिवाइस जो दूसरे को डेटा दे रहा है उसको सेंसर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिश में रडार का पिक्चर देख सकते हैं या नहीं? देख सकते. Yes, sir. देख सकते. तो रडार इज सेंसर डिवाइस, सेंसर इक्विपमेंट फॉर एक डिश. AIS की डेटा आप रडार पे देख सकते हैं या नहीं? देख सकते हैं. Yes, sir. तो AIS इज सेंसर इक्विपमेंट टू द रडार. तो सब कोई भी सेंसर इक्विपमेंट हो सकता है. एक डिवाइस जो दूसरे को डेटा देता है वो सेंसर इक्विपमेंट. तो सिमिलरली वी हैव GPS से पोजीशन आती है, जायरो कंपास उससे कोर्स आता है, स्पीड लॉग्स उससे स्पीड आ सकती है, रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर से ROT आ सकता है, रेट ऑफ टर्न. So some of the data is already fixed in the system and some of the data is collected from different sensor equipment and it is transmitted as a broadcast. AIS is a broadcast transponder system. Broadcast transponder. What is the meaning of broadcast? Anyone? What is the meaning of broadcast? Apurva? Sir, it gives information to all other vessels in the vicinity. Broadcast means it is free for all. Anyone having a receiver can receive it. जैसे रेडियो FM ब्रॉडकास्ट होता है, मेरे पास रिसीवर, मैं ट्यून करता हूं, मैं सुनता हूं.
So it is broadcast, means it is meant for everybody, anybody who want to receive. Broadcast system, yes. Transponder, have you heard the word transponder before? Transponder सुना है? सर 60। यस सर। 60, वेरी गुड। 60 पूरा नाम क्या है 60 का? सर्च एंड Search and rescue transponder. Very good. Also EPUB, sir. EPUB. EPUB is not a transponder. Okay. Now the difference why SAT is a transponder but EPUB is not a transponder. तो ये समझना जरूरी। समझना कैसे समझे? तो फंक्शनिंग ऑफ SAT, कोई बता सकता है मुझको कि SAT कैसे काम करता है? सर एक्टिवेट होने के बाद एक्स बैंड रडार पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से पोजीशन इंडिकेट करता है। ओके, पर अभी आपने कहा कि जब हमने एक्टिवेट कर दिया SAT को तो हमारे एक्स बैंड रडार पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे। पहले डॉट्स दिखेगा, फिर आर्क्स बनेगा, छोटे छोटे आर्क्स बनेंगे ऐसे, बाद में कॉन्सेंट्रिक और नजदीक जाएंगे तो सर्कल बन जाता। नो, इट डज नॉट वर्क। जो आपने कहा वो सही है, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक चीज मिसिंग है। वो है ये कि जब आपने एक्टिवेट किया SAT को तो ट्रांसमिट नहीं करता। ऑन हो गया है, ट्रांसमिट नहीं करता। ट्रांसमिट कब करता है? जब कोई दूसरा जहाज पास से जा रहा होगा और उसके एक्स बैंड की सिग्नल इसको हिट करती है जब, तो ये जवाब देता है। That means it will transmit only when it is receiving a query or interrogation. Perf? Yes sir, clear sir. Clear. So it responds to a transmission. अगर कोई ट्रांसमिशन आई तो जवाब देता है। That is a transponder. But that is not the case with EPUB. EPUB क्या करता है? उसको स्विच ऑन कर दो, वो ट्रांसमिट करने लगेगा। That EPUB is not responding. It is just transmitting. But SAT will respond. Respond to what? An interrogation. So AIS is also a kind of transponder. How? तो एक तो ब्रॉडकास्ट करता है, सो करता ही है, बट इट इज ऑल्सो हैविंग दैट कैपेबिलिटी कि अगर किसी ने जवाब पूछा, मतलब कोई इंटरोगेशन दी, तो उसका जवाब भी भेजता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू क्वेरीज, इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू इंटरोगेशन। सो AIS is a transponder, broadcast transponder system. Understood? Clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So, going step by step once again, it is an electronic device fitted in the bridge, which is transmitting ships' navigational parameters and identification to other ships in the vicinity, can also receive such information from other ships, and can also exchange information from the shore station automatically. Come again? Come again? कुछ बोला? नहीं बोला। Okay. So मैं कहा था, हाँ, it will transmit and it will receive such information automatically without human intervention. आपने स्विच ऑन कर दिया, बस काम हो गया। कब क्वेरी आती है, कब जवाब जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। सो ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों करते हैं भाई? व्हाट इज द पर्पस? आई होप यू आर राइटिंग नोट्स ऑल्सो साथ साथ में, सिर्फ सुन नहीं रहे हो। छोटा छोटा एक दो वर्ड का नोट साथ साथ में लिखते चलो। सर आइडेंटिफाई करने के लिए चीज यूज होती है एक तरह से, नाम में बताया। वो तो हो ही गया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया तो हो गया। आइडेंटिफाई किया तो क्यों किया? सर
Safety of navigation. Safety of navigation. Correct? Correct? Yes, sir. Aid in navigation. Yes, sir. So purpose of AIS, first and foremost purpose is enhancing safety of navigation. ये exchange of information होता है, किस लिए होता है भाई? तो इससे हमारी safety of navigation बढ़ती है. Second, since the data is available and all the ships are transmitting this data, especially in the coastal areas, every ship is getting watched by the shore authorities. So, in a way, all the ships in the vicinity are getting monitored by the shore station authorities. Is that correct? सब लोग को उनको पता है कि कौन जहाज है, कहाँ पे है, किधर को जा रहा है, क्या कर रहा है, सब पता है उनको. So this helps in promoting marine pollution control. कैसे? तो जब सब जहाज को पता है कि भाई लोग देख रहे हैं मुझको मेरे AIS से, तो कोई गड़बड़ नहीं करना चाहेगा. It is normal human behavior that if nobody is seeing me, then I am free to do anything. But if I am under watch, तो भाई हम तो सबसे अच्छे हैं, हम कुछ नहीं करते थे. So another purpose is maritime pollution control. In the same way, as we said, in the coastal area, it is also enhancing search and rescue operation. It is assisting, the system can assist very nicely in case of any distress situation in search and rescue operation. So एक तो यही है कि शोर अथॉरिटीज को मालूम है कौन जहाज कहाँ है. अगर किसी ने AIS से डिस्ट्रेस भेज दिया तो उनके भी घंटे बच जाएगी कि डिस्ट्रेस है कहीं पे, हमारे जहाज पे भी बच जाएगा. तो एक तो अलर्टिंग जो है SART के साथ, जो रडार SART अभी बात करी, ऐसा एक AIS SART भी होता है. बेसिकली दोनों कंबाइंड होते हैं, या अलग भी हो सकते हैं. So now not only that we have radar SAT, but we have also got AIS SAT. और एक्टिवेट कर दिया तो वो AIS के फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसमिशन करेगा और सभी को AIS से पोजीशन मिल जाएगी. कौन है, कहाँ पे है, सारा इंफॉर्मेशन सभी लोग के पास पहुंच जाएगा. Then we can proceed and assist. पहले कंसेंट्रिक सर्किल बनता था SAT में, तो जब नजदीक आते हैं तो एम्बिग्यूटी, पहले डॉट था तो इधर है, नजदीक पहुंचे तो यहां से यहां कहीं भी हो सकता है, और नजदीक पहुंचे तो कहीं भी हो सकता है. सर्किल बन जाती है, रेंज रिंग्स जैसा बन जाता है. तो उसमें 100% आइडेंटिफिकेशन लास्ट में जाके रडार SAT में देखना पड़ता है लुकआउट से कि कहाँ पे है सर्वाइवर. बट यहाँ पे एकदम पोजीशन, डॉट टू डॉट पोजीशन मिल जाएगी आपको. आप चार्ट पे कोर्स ड्रॉ कीजिए और सीधा बढ़िए. And the range also can be more. So it is also able to assist in search and rescue operation. So the three purposes: enhance safety of navigation, maritime pollution control. Hey विनय, टांग दिख रहा है तुम्हारा, टांग नीचे करो. देखो दोस्त के साथ बैठा हुआ है, शैतानी कर रहा है. So maritime pollution control, and lastly can assist in search and rescue operation. Ridesh? Yes sir. Okay, microphone off कर लीजिए. It was on. ठीक है, बोल रहे हो तो बात करो, कोई बात नहीं. So purposes. So as we said, radar transponder system. रडार ट्रांसपॉन्डर होने के लिए एक्चुअली एक तो ये VHF पे काम करता है. दिस इज वर्किंग ऑन द VHF. VHF का रेंज, लाइन ऑफ साइट कितना होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ VHF कम्युनिकेशन, गौतम?
Yes, sir. What is the range of VHF communication? VHF sir 24 mile. 24 माइल, इतना एकदम प्रिसाइज कैसे बोल? 30-40 माइल का रेंज होता है. That is because of curvature of the earth. It is the waves can travel in a straight line, तो 30-40 miles का range होता है. So Yes. since it is working on the, yes, since it is working on the VHF, the range is about 30-40 kilometers or miles, maybe थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि पावर कम होती है इसमें, but nonetheless 30-40 miles तक का रेंज हम मान करके चल सकते हैं AIS. So VHF है, line of sight है, तो there has to be some component. जैसे हमने बनवास में देखा था कि एक डब्बा होता है, reset buttons होते हैं, एक ब्रिज के इनसाइड के लिए, एक बाहर के लिए, alarms, two different types of alarms were there, buzzer in the system, cabin alarms, alleyways alarms. So similarly, AIS is also having certain components. VHF system है तो VHF रेडियो तो होगा ही, ट्रांसमीटर भी होगा, रिसीवर भी होगा, एंटेना भी होगा ट्रांसमिशन रिसेप्शन के लिए, और भी 2-4 चीजें हैं. जीपीएस मॉड्यूल हो सकता है, इनबिल्ट हो सकता है. अगर जीपीएस होगा तो जीपीएस का एंटेना भी होना चाहिए. So these are few things which are there in the AI system. Along with this components, पहला क्या? VHF transmitter, VHF receiver, VHF antenna, साथ में एक DSC receiver भी होता है उसमें. There is a DSC receiver in the AIS as well. Now tell me how many people are thinking DSC मतलब distress? How many people thinking? DSC है तो जरूर कुछ distress से करना होगा. Yes, sir. So sir, digital selective calling. Digital selective calling, sir. Yes. So mobile जो हम आप बात करते हैं फोन पे, that is also a way of digital selective calling. डिजिटल सेलेक्टिव कॉलिंग क्या? तो मैं एक नंबर डायल करता हूँ, घंटी आपको बजती है. ट्रांसमिशन तो सब तरफ जा रही है मेरी. जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो ट्रांसमिशन तो सब तरफ गई, लेकिन एक ही की घंटी बजती है. कैसे? बिकॉज आई एम सेलेक्टिवली कॉलिंग बाय आइडेंटिफाइंग द रेसिपिएंट बाय नंबर. वैसे जहाज में MMSI होता है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर वैसे जहाज का मोबाइल नंबर, हमारा 10 डिजिट का, उनका 9 डिजिट का. तो यूजिंग हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं, जो टावर लगे होते हैं, VHF से ऊपर की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वो VHF यूज कर रहा है. सो DSC रिसीवर is not necessarily about distress, it is about type of communication, method of communication. Selectively calling, that means AIS can be used to selectively call another station if I want, or I can broadcast also. Choice भी है मेरे पास. So I can either call a station or a group of station or all station as I think necessary. जो मेरी requirement होगी उसके हिसाब से. DSC receiver के अलावा there are 2 TDMA receivers. तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. आप लोग को ध्यान है जब रिलायंस का फोन आया था पहला शुरुआत 90s के लास्ट में, छोटा वाला सिल्वर कलर का होता था, कौन सा फोन उसको बोलते थे? What phone we used to call it? Did we call? Okay, I'm giving you the name. See if it reminds you. It was a CDMA phone. Yes sir, CDMA. CDMA था ना, तो CDMA वो था, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? AIS में क्या बोल रहे हैं? TDMA.
दोनों सिमिलर टाइप है, CDMA एंड TDMA, सिमिलर साउंडिंग थिंग। वो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था, ये टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो दीज आर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन TDMA इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। डिजिटल सिलेक्टिव कॉलिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद कैसे इतने लोग एक साथ कम्युनिकेट करें, तो उसके लिए TDMA है, उसके ऊपर आएंगे फिर से। तो VHF सर थर्ड ट्रांसमीटर, कंपोनेंट क्या था? जी थर्ड कंपोनेंट क्या बताया था या इसका? हाँ, अभी वही बता रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट ही कर रहा था। VHF ट्रांसमीटर, VHF रिसीवर, VHF एंटेना, VHF एंटेना, DSC रिसीवर, TDMA रिसीवर, दो TDMA रिसीवर। GPS मॉड्यूल हो सकता है नहीं भी, ऑप्शनल है, क्योंकि अगर इसमें नहीं होगा तो हम बाहर से GPS का डेटा लेंगे, या हो सकता है इनबिल्ट भी हो। तो GPS मॉड्यूल, अगर GPS मॉड्यूल होगा तो उसका एंटेना भी होगा, GPS एंटेना। Then another component is MKD, Mike Kilo Delta. MKD stands for Minimal Keypad and Display. ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं स्लाइड्स पे। अभी तक जो हमने बात किया उसको आप रीड करेंगे, यू विल गो थ्रू इट, जस्ट नॉट मतलब बोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट गो। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता जाऊंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू द स्क्रीन, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो वहां से शुरुआत करेंगे। तो अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन, लेट मी फर्स्ट ओपन द फाइल, तब मैं शेयर करता हूँ। All right, so my screen visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, Yeah. good. So automatic identification system. Okay, we will objectives, ये objectives है हमारा objective कि हम पढ़ लेंगे तो क्या सीखेंगे, पर्पस जान लेंगे, शिफ्ट टू शिफ्ट डेटा एक्सचेंज कैसा होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, वो सब बात करेंगे। So and we'll learn some more also. AIS से जहाज को ट्रैक भी किया जा सकता है। Anyway, छोड़ दो इसको, आगे देखो। So just go through the slides, और अगर कुछ जरूरत पड़े तो do let me know for explanation. Next, what was the amendment requiring? क्या करेगा सिस्टम? So it is designed to provide information, receive information, and exchange data with shore-based facility. What is the system about? Broadcast transponder.
नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं लिस्ट दिखाना चाह रहा था इसीलिए आया यहाँ पे। जो पहला और दूसरा वो दोनों इसी में, ट्रांसीवर मतलब ट्रांसमीटर भी, रिसीवर। सर ये TDMA का फुल फॉर्म बता दीजिए प्लीज वापस से। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आगे आएगा, वो डिटेल में बात करेंगे हम, TDMA के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। सर थर्ड वन में MGT, थर्ड वन में वन VHF DSC रिसीवर फॉर MGT चैनल। is management, MGT is management, channel management। यस सर। MGT is short for management। माइक्रोफोन ऑफ कर लो, हाँ हो गया। ऑलराइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, बाकी तो सब क्लियर होगा। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस MKD, जो EIS के नाम पे डब्बा आप देखते हो, जिसमें एक स्क्रीन होती है, एक दो बटन होते हैं, इतना ही तो होता है। इसी को MKD बोलते हैं, इस डब्बे को MKD बोलते हैं। क्यों? वन टाइम सर, ये GPS सर, GPS एंटीना इफ फिटेड विथ इन बिल्ट GPS। हाँ, मतलब नहीं समझ में आया? एक बार सर के अगर GPS मॉड्यूल है। हाँ, कहने का मतलब ये कि हम तो पढ़ रहे हैं AIS जो VHF का सिस्टम है, लेकिन उसके भीतर में एक इनबिल्ट GPS भी हो सकता है। जैसे आपका मोबाइल तो है बात करने के लिए, लेकिन मोबाइल में GPS है ना आपके? यस सर। तो वही इनबिल्ट हो गया, किस मोबाइल में GPS इनबिल्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। तो AIS तो है, लेकिन उसमें GPS भी इनबिल्ट है, मतलब उसके भीतर GPS का इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है। ठीक है? यस सर। तो MKD चलें, अब MKD बात कर लें थोड़ा। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो MKD जो डब्बा आप देखते हैं AIS के नाम पे, उसमें एक स्क्रीन होती है, एक दो बटन होंगे, ऐसा बटन होएगा स्क्रॉल करने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ दिखता है एंट्रीज। इस एंट्रीज में 3 तो कॉलम होते हैं, क्या है, 3 तो कॉलम है, और आगे इसका डिटेल्स देखना है तो इधर स्क्रॉल कीजिए, दूसरे जहाज का डिटेल्स देखना है तो इधर स्क्रॉल कीजिए। तो मिनिमम डिस्प्ले हो गई कि नहीं? यहाँ पे एकदम कम से कम डिस्प्ले दिखा रहा है, एंड कम से कम बटन, पावर का बटन होगा हाई लो करने के लिए, एक स्विच ऑन का होगा, स्विच ऑफ का होगा, वो होगा, स्क्रॉल करने के लिए ये होगा। सो सिमिलरली, और सिमिलरली नहीं बल्कि इसीलिए इसको बोलते हैं MKD, मिनिमल कीपैड एंड डिस्प्ले। सो दिस इज MKD, बेसिकली जो यूनिट आप हैंडल कर रहे हैं, जिसमें डिस्प्ले होगा, फ्यू बटन्स होंगे, और उसके अलावा बहुत सारे इंटरफेस होने चाहिए। जैसे USB का इंटरफेस होता है ना कंप्यूटर में, आप कीबोर्ड लगाने के लिए, थंब ड्राइव लगाने के लिए, आजकल वो HDMI भी आ गया, वो भी लग जाता है, वगैरह वगैरह। So many of the interfaces will be available for connecting different devices। अभी हमने बात किया था कि मुझको जायरो से भी डेटा चाहिए, यहाँ GPS से भी चाहिए हो सकता है, रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर से भी चाहिए हो सकता है। सो अलग अलग डिवाइसेस हैं, उससे इनपुट चाहिए हो सकती है मुझको, तो उसके लिए many ports are available। So these are the components of the system। The purposes
What is the purpose of AIS? So we talked about 1, 2, and 3. सेफ्टी ऑफ नेविगेशन कैसे इनहांस होती है? एनहांस मतलब बढ़ाना। कैसे बढ़ती है सेफ्टी और नेविगेशन? तो आगे बात करेंगे हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में, थोड़ा अच्छे से। भाई मुझको नाम पता चल जाता है, मुझको सबकी मूवमेंट पता चल जाती है, कौन कहाँ क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब पता चल जाता है। उसके अलावे it can be used for various other, it can be used in various other manners. सेफ्टी मैसेज भी ट्रांसमिट कर ले सकते हैं इस पे, श्योर अथॉरिटीज टाइड कंडीशंस भी भेज सकते हैं, नेविगेशनल वार्निंग्स हो, बॉय मिसिंग हो, खिसक गई हो, वो सब भी भेज सकते हैं। सो ऑल टोल्ड इट इज एडिंग इन सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। कंट्रोलिंग मैरीटाइम पोल्यूशन, वो भी just being watched, we don't like to do something wrong, and search and rescue, that also we talk. So these are the purposes of AIS. सर कंट्रोलिंग मैरीटाइम पोल्यूशन ये कैसे हो सकता है सर? अभी बताए। अच्छा ठीक है, ऐसा समझते हैं, एक एग्जांपल से बात करता हूँ। आप समझो एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है? यस सर। और पॉकेट में माल लेकर के गए हो आप बदमाशी करने के लिए। यस सर। अब बगल में टीचर खड़ा है, इन्विजिलेटर खड़ा है, तो पॉकेट से मटेरियल निकलेगा आपके? नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? नहीं रहेगा तब ना। नहीं रहेगा तब। बहुत अच्छे। मतलब अगर आपको पता है कि कोई देख रहा है, मान लो टीचर नहीं है, कैमरा ऊपर में लगा हुआ है, तो करोगे क्या? नहीं सर। नहीं करेंगे। मतलब कोई देख रहा है तो नहीं करेंगे ना, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे अगर कोई देख रहा है मुझको तो। यस सर, समझ गया। AIS के थ्रू मुझको लोग VTS और शोर अथॉरिटीज और सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? यस सर। मैं कौन हूँ, नाम क्या है मेरा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कोर्स है, सब स्पीड सब पता है कि नहीं सामने वाले को? यस सर, AIS के थ्रू सब देख रहा है। यस सर, थैंक्स। तो अब इस केस में मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे ऑयल पंप आउट कर दूं और पकड़ा जाऊं? नहीं सर। तो पोल्यूशन कंट्रोल हो गया? यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड। सो दिस इज द AI सिस्टम इज अ VHF सिस्टम एज वी ऑलरेडी सेड। तो 2 फ्रीक्वेंसी एलोकेट किए गए हैं फॉर ऑपरेशन। बाय द वे, एनीवन हु इज not comfortable with Hindi in this batch of all 25 people? Anyone not comfortable with Hindi? Because I am using sometimes. No, sir. No, if somebody has problem, please say yes. नहीं तो मैं 5 सेकंड में समझ जाऊंगा कि no, nobody has problem. Anyone has problem, please come again. Make a point. Both language sir, compatible sir. Okay, good, good. नहीं हो सकता है साउथ इंडिया से अगर कुछ हो तो हो सकता है they may not be very familiar with Hindi, so then I will stick to English. All right. So the 2 frequencies allocated by ITU. ITU कौन है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जैसे IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम क्या है? तो शिपिंग सेफ्टी से रिलेटेड सारा काम देखते हैं वो। ITU इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इनका काम क्या है? तो दे रेगुलेट कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। आप यहाँ पे यूज करेंगे चैनल 16 और अमेरिका में करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में करेंगे तो रिस्पांस वही मिलेगा ना? सब लोग जवाब देते हैं चैनल 16 पे ही, कहीं पे भी रहो। Yes, sir. Yes, sir. Because it is a common ground which has been made, international frequency, सब लोग यही यूज करेंगे। Similarly, ITU has allocated 2 frequencies for the use of AIS.
So AIS will always be used on these two frequencies. The frequencies are named as AIS1 and AIS2. You have the frequency in front of you, both the frequencies, what they are. They also have a channel number for both the frequencies. जैसे चैनल 16 तो हम बोलते हैं, बट चैनल 16 में फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन बताएगा? नेगेटिव. ओके. सो सब लोग नोट कर लो, चैनल 16 में 156.8 मेगाहर्ट्ज. 156.8 मेगाहर्ट्ज. So for maritime use, you can also write down this maritime VHF frequency band. Maritime VHF frequency band मतलब VHF में जो मैरिटाइम इंडस्ट्री यूज कर सकती है वो ये फ्रीक्वेंसीज हैं. इतने से इतने के बीच में ही सारा कम्युनिकेशन होगा उनका, which is 156 to 174 मेगाहर्ट्ज. इसके बाहर नहीं, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं, मैरिटाइम वाले नहीं, क्योंकि ये VHF है. तो VHF तो बहुत लोग यूज करेंगे ना भाई. एविएशन वाले भी करेंगे, मैरिटाइम वाले भी करेंगे, पुलिस भी करेंगे, एम्बुलेंस सर्विस भी करेगी, बहुत लोग कर सकते हैं. सर 156 से 174 मेगाहर्ट्ज. मेगा मतलब क्या? 10 to the power 6. So there are two channels, 87B and 88B, and the frequencies inside these channels are these: 161.975 megahertz and 162.025 megahertz. These are the two channels and the frequencies. The mode of communication which is used is simplex and duplex. Simplex for ship to ship and duplex for ship to shore. These are dedicated frequency. This frequency cannot be used for any other purpose. If at sea, then this cannot be used for any other purpose. As we know, range of AIS transmission is 30 to 40 miles. But in coastal area it can be increased. जैसे टावर लगा करके हमें नेटवर्क सब जगह मिल जाता है, जंगलों में होते हैं वहां भी नेटवर्क मिल जाता है बहुत बार. कैसे मिल जाता है? तो टावर लगा देते हैं. वो टावर क्या है? तो रिपीटर है बेसिकली. ऐसा रिपीटर हम AIS में भी लगा सकते हैं. We can also put that, and that way we can enhance the range covered. Sir, question please. Sir, what is simplex and duplex? Okay. Simplex is the operation when once transmission, once reception, one thing at a time. Either you transmit or you receive. Simplex operation. Remember your ship, you are using walkie-talkie. आपको बोलना हो, क्या करते हैं? We press a button, then speak, and then wait for the reply. रिप्लाई करते समय बटन प्रेस रहती है कि छोड़ देते हैं? प्रेस रहती है। रिसीव करने के लिए आप बटन छोड़ देते हैं ना? यस सर। जब आप बोल रहे हो, बोलते हुए आप रिसीव कर सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते, नहीं कर सकते। सिंप्लेक्स ऑपरेशन. मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो अपने दोस्त से, दोनों एक दूसरे की बात सुन सकते हो कि नहीं एक साथ, कि बोल भी रहे हैं सुन भी रहे हैं? यस सर, डुप्लेक्स. यस सर, कर सकते हो. ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज डुप्लेक्स. ओके, थैंक यू। ऑलराइट. सो एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा ये भी नोट कर ले सकते हैं. देयर आर टू पावर मोड्स.
two power modes high and low. हाई पावर में 12.5 watt है, maximum power radiated is 12.5 watt, and in low power it is 1 watt. हाई में कितना बोला था? 12.5 watt and 1 watt. वैसे आगे भी आएगा. So now coming to the working of the AIS, हमने TDMA रिसीवर देखा था, तो TDMA टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है. क्या है ये TDMA? हम बात करेंगे उसके बारे में. We will talk about this. Basically, as we said, data is collected from various sources, various equipment. Some data is pre-fed, उसमें हम पहले से डाल देते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं उसमें, या इंटरफेस होता है उसके थ्रू डाल देते हैं. किसी का माइक्रोफोन ऑन है, शोर नहीं हो रहा, लेकिन बीच बीच में खड़खड़ आवाज आ रही है. So we will talk about this again in detail. TDMA थोड़ा आगे क्या चीज होती है, ये TDMA है क्या, डिटेल में बात करेंगे. आज हमारा 2 क्लास है, इसके बाद वाली भी क्लास है हमारी, तो वो भी करेंगे. So few slides are just for you to read. हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करता रहूंगा मैं. Just read through these slides. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा. सर पिछली वाली स्लाइड एक बार वापस से लगा दीजिएगा 1 सेकंड के लिए. यस, ओके. Sir, can you please remove the tools? अच्छा, स्लो है, मैंने तो रिमूव कर दिया है, Sorry, हमारे पास आया नहीं, आएगा अभी. 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा. Yes sir, आ गया. Thank you sir. हाँ, वो नेटवर्क में डिले होता है, थोड़ा स्लो होता है, तो ऐसा रह जाता है. जो मैंने यहाँ ट्रांसमिट कर दिया वो अभी अपडेट नहीं होता है, तो पुराना वाला रह जाता है. हो गया? किसी ने पूछा था पिछला स्लाइड? सर हो गया. ओके, हो गया सर. नेक्स्ट, हाउ इट इज वर्किंग डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, सर 1 मिनट पिछले पर. क्या नोट्स बना रहे हो क्या? नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले रहा था. स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स भेजूंगा आपको, पूरा डिटेल्स होएगा उसमें. ये अभी पढ़ो, जनरल आइडिया लो, नोट्स में सारी चीजें होंगी. अभी मेरे पास ईमेल आईडी आया नहीं है. संजीव, कैन यू लिसन टू मी? अभी होएगा नहीं. नेक्स्ट, Sir, what is differential GPS receiver? DGPS सुना है? हाँ जी सर. Yes sir. यस सर. संजीव, हाँ जी सर. संजीव ईमेल भेजा है क्या मुझको इनका, पूरे बैच का? अभी नहीं भेजा सर. अभी नहीं भेजा है, तो अपडेट करके भेज देना, इनको नोट्स भेज दूं, साथ साथ पढ़ते रहेंगे. ठीक है सर. राइट, ओके ओके, थैंक यू. DGPS सुना है आपने? Sir, यस सर.
डिफरेंशियल जीपीएस वही है। जब हम जीपीएस पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल जीपीएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल जीपीएस चीज होती क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर। अगला स्लाइड, स्लाइड 14। ये जनरल आइडिया है कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं। हम अभी डिटेल में देखेंगे कि व्हाट डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय एआईएस, अभी डिटेल में, अभी इसके बाद तुरंत देखें। नेक्स्ट, ये हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको कि ये ऑटोनॉमस मोड क्या है, कंटिन्यूअस मोड क्या हो गया, ये तो बता दूं, इसके बारे में भी डिटेल में बात करें। इट विल कम, तो थोड़ा थोड़ा आपको प्री नोशन हो रहा है कि हाँ ये सब आएगा, ये सब आएगा, ये सब आएगा आगे। सो एआईएस, ऑल एआईएस आपने देखा हुआ है जहाज में कि ऑटोमेटिकली चलता है, कुछ करना नहीं होता। बेसिकली ऑटोनॉमस मोड वही है, लेकिन ऑटोनॉमस मोड में भी जो हम एसओटीडीए में यूज करते हैं या टीडीए में यूज करते हैं, उससे रिलेटेड है ये मोड ऑफ ऑपरेशन। आगे हम क्लियर करेंगे इसको। 2 चैनल्स आर गिवन बिकॉज एक फ्रीक्वेंसी से तो काम हो सकता था, लेकिन दो फ्रीक्वेंसी से हमारा सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इतने सारे जहाज हैं, इतना सारा ट्रांसमिशन होता है, बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है, तो इन सब को केटर करने के लिए दो फ्रीक्वेंसी होने से हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाती है। सिस्टम बिकम्स मोर रॉबस्ट, रॉबस्ट मतलब मजबूत। सो 2 frequencies allow the AIS to be a robust system, does not fail. It is not failing. It is always in operation and working good all the time. Next, ये हम बाद में बात करेंगे, ये बात करेंगे बाद में। Okay. So now data transmitted by AIS, ये हेडिंग डाल सकते हैं अपने नोट्स में जो लिख रहे हैं। What are the data transmitted by AIS? हमने भी बात किया था कि information is regarding identification and navigational parameters. So these navigational parameters and identification parameters are divided in these 4 categories. One category is static information or static data. Other category is dynamic data. Third category of information is voice related data. Out of these 4, these are automatic. मतलब खुद ब खुद ट्रांसमिशन होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। Additionally, there is another feature provided which is known as short safety message. Fourth category is short safety message, which is manual. मैनुअल मतलब जैसे आपको मोबाइल फोन में एसएमएस की सुविधा दी गई है कि यू कैन सेंड शॉर्ट मैसेजेस, टेक्स्ट लिख सकते हैं, वैसे एआईएस में भी यह सुविधा दी गई है कि यू कैन राइट शॉर्ट मैसेजेस, बट दैट मैसेज शुड बी सेफ्टी रिलेटेड, and that is why we are not calling it SMS, we are calling it SSM, short safety message. So these are the 4 categories of data. Now we will be seeing
what is there in static data, what is there in dynamic data, what is the data included in watch data. Just after the break, we'll come back again in 15 minutes and then we'll continue on with this. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Right, so take a Thank you, sir. break. Yes. Yes. Thank take you, a sir. break, and then we come back again and we continue with the topic. Okay? Yes. All right. Yes. चलो break के बाद मिलते हैं. Thank you, sir. Yes. चलो signing off.